Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you're doing well. So this is the next video in the Best of Cattle RDA practice series, right? So today we'll take a tournament-based set, right? This is of moderate level difficulty, I would say, right? Let's start with this set. Chalo. And as always, before you proceed on with the rest of the solution, first pause this video right here itself. Try this set yourself, and then move on to the solution, right? Now. I hope you have tried this. Let's start solving this. So क्या दिया हुआ है यहाँ पे? The game of Chango is a game where two people play against each other. One of them wins and the other loses. So basically there are no draws, right? 12 players participated in a Chango championship. They were divided into four groups. Group A consisted of Aruna, Azul, and Arif. Group B consisted of Brinda, Brij, and Biju. Group C consisted of Chitra, Chetan, and Chavi. And Group D consisted of Dipen, Donna, and Dev. तो बेसिकली अपने चार ग्रुप्स के जो नाम है ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप सी ग्रुप्स डी उसमें उसी नाम के आपके तीन तीन लोग हैं. So let's first start writing this. So group A would be Aruna. Let's write these names. So Aruna, Azul, and Arif. Then in the second group, we have group B, Brinda, Bridge, and Briju. Brinda, Bridge, and Biju. Then C is Chitra, Chetan, and Chavi. Chitra, Chetan, and Chavi. And in the final, Dipen, Donna, and Dev. Dipen, Donna, and Dev. Right now, let's read further into this. Players within each group had a distinct rank going into the championship. So players within one group. So ये group में ये तीनों का different rank था, ठीक है? Into the championship, the players have not been listed necessarily according to their rank. So it is not saying Aruna is rank 1, Arjul is rank 2, RF is rank 3 and so on. ठीक है? उसी order में उनके rank नहीं है. That is not clear. It could be any possible order. Then in the group stage of the game, the second and the third rank players play against each other, and the winner of that game plays against the first rank player of the ग्रुप. सो क्या एग्जाम्पल दिया इसने? जैसे फॉर एग्जाम्पल अरुणा, अजुन एंड आरिफ है. एग्जाम्पल के लिए सपोज दिस इज रैंक 1, दिस इज रैंक 2 एंड दिस इज रैंक 3. सो विद इन लाइक द ग्रुप एट द ग्रुप स्टेज, हर ग्रुप में क्या होगा, जो सेकंड एंड थर्ड रैंक के प्लेयर होंगे वो आपस में खेलेंगे. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दिस इज 1, 2 एंड 3, सो अजुल एंड आरिफ विल प्ले अ गेम अगेंस्ट ईच अदर. उसमें से जो आपका विनर होगा वो रैंक 1 वाले के साथ खेलेगा, फॉर एग्जाम्पल अरुणा के साथ. ठीक है? दिस इज गोइंग टू हैपन फॉर ईच ऑफ द फोर ग्रुप्स एट द ग्रुप स्टेज. क्लियर? नाउ this is done and the winner of that game plays against the first rank player of the. ठीक है? The winner of this second game, right, is considered as the winner of the group and enters the semi-final. तो अजुल एंड आरिफ का फॉर एग्जांपल मैच हुआ, उसमें लेट्स से अजुल जीता एंड अजुल एंड फिर अरुणा का मैच होगा. उन दोनों में जो जीता is considered the winner of the group stage, right? And that player winner of the second game is considered the winner of the group. तो उस ग्रुप से ये सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा. सेमीफाइनल एसेंशियली यहाँ से एक टीम, यहाँ से एक टीम, यहाँ से एक टीम और यहाँ से भी आपकी एक टीम. तो वो चार टीम्स. ठीक है? The winners from group A and B play against each other in one semi-final. तो A and B से जो विनर आएंगे उनका एक मैच होगा. एंड सिमिलरली आपका विनर्स फ्रॉम द ग्रुप सी एंड डी प्ले अगेंस्ट ईच अदर इन द अदर सेमीफाइनल. तो इन दोनों के विनर का एक मैच होगा. सो यहाँ से एक विनर आएगा, यहाँ से एक विनर आएगा. वो जो दोनों विनर होंगे ऑब्वियसली आपका क्या खेलेंगे, फाइनल खेलेंगे और उनसे विनर डिसाइड होगा. सो दैट इज द टूर्नामेंट, राइट, जो डिस्क्राइब कर रखा है. एंड वी हैव ओनली अ फ्यू पॉइंट्स, 3 points. सो फर्स्ट इज चित्रा डिड नॉट विन द चैंपियनशिप. राइट, चित्रा डिड नॉट विन द चैंपियनशिप. तो चित्रा विनर नहीं है. ठीक है? अभी तो इसका बहुत ज़्यादा मीनिंग तो नहीं बनेगा. चित्रा डिड नॉट विन द चैंपियनशिप, इसका लाइक बहुत सारा मीनिंग है. फॉर एग्जांपल चित्रा कुड हैव गॉटन एलिमिनेटेड एट द ग्रुप स्टेज इटसेल्फ, तो ऑब्वियसली वो नहीं जीतेगी. ऐसा भी हो सकता है कि चित्रा क्वालिफाइड फ्रॉम द ग्रुप स्टेज, सेमीफाइनल में खेली और सेमीफाइनल हार गई. ऐसा भी हो सकता है कि सेमीफाइनल भी जीत गई और फाइनल में जाके हार गई. सो in all the possible scenarios, चित्रा did not win the championship. This statement will hold true. ठीक है? तो इसका भी बहुत ज़्यादा हम मीनिंग तो समझ चुके हैं बट इसका यूटिलाइज हम नहीं कर सकते. सेकेंड, अरुणा डिड नॉट प्ले अगेंस्ट आरिफ. सो अरुणा एंड आरिफ का मैच नहीं हुआ है. ओके. ब्रिज डिड नॉट प्ले अगेंस्ट ब्रिंदा, राइट? तो ब्रिज एंड ब्रिंदा का मैच नहीं हुआ. परफेक्ट. नेक्स्ट,
Aruna, Biju, Chitra, and Dipen played 3 games each, while Azul, Chetan played 2 games each, and the remaining players played 1 game each. Now, this is important to the set. So, इनके number of games हैं, ग्रुप स्टेज का नहीं, ओवरऑल इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में इनके नंबर ऑफ गेम्स स्पेसिफाइड है. लेट्स राइट दिस डाउन. अरुणा, बिजू, चित्रा एंड दीपेन. अरुणा का 3 games, देन बीजू का 3 games, देन चित्रा, दीपेन, चित्रा and Dipen all have played 3 games each. Next, Azul and Chetal played 2 games each. So Azul ka 2 game and Chetan ka 2 games. So this is Chetan. While the remaining players played 1 game each. So Arif का 1 मैच, Brinda का 1 मैच, Bridge का 1 मैच, छवि का 1 मैच, डोना का 1 मैच और देव का 1 मैच. ये है इनके टोटल नंबर ऑफ मैचेस जो दिए हुए हैं. ना कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ से कंक्लूजन आपको इन नंबर्स के थ्रू निकालना पड़ेगा. सबसे पहले सोच के देखो, यहां पे जिस भी प्लेयर का हर ग्रुप में ये जो 3 है, ये 3 क्या स्पेसिफाई करेगा, सोच के देखना. ये स्पेसिफाई करेगा कि इस ग्रुप से ये बाहर निकलेंगे. बाहर निकलने का मतलब यहां पे विनर होंगे, उस ग्रुप स्टेज के विनर होंगे. क्यों मैं बोल रहा हूं ऐसा? बिकॉज इस ग्रुप स्टेज में जैसे ये जो 3 प्लेयर है, इनके बीच में कितने मैचेस होंगे, मतलब ओवरऑल 2 ही तो मैचेस होंगे. एक सेकंड एंड थर्ड वाला आपस में मैच खेलेगा, राइट. और जो इनका जो विनर होगा, फॉर एग्जांपल ये पर्सन क्या खेलेगा, इस ग्रुप का जो फर्स्ट प्लेयर होगा, जो रैंक 1 होगा, उसके साथ एक मैच खेलेगा. सो ओवरऑल अगर देखोगे तो ग्रुप स्टेज पे कोई पर्सन मैक्स टू मैक्स कितने मैच खेल सकता है? 2 मैच, मैक्स टू मैक्स, राइट. फॉर एग्जाम्पल विनर को देखोगे, जैसे इनमें जो रैंक 1 होगा वो तो ऑब्वियसली एक ही मैच खेलेगा, राइट. जो विनर होगा वो ऑब्वियसली एक मैच खेलेगा. नाउ जो इनमें से विनर होगा वो एक मैच यहां खेला होगा, और वो विनर के साथ जो फर्स्ट रैंक होगा उसके साथ एक मैच खेलेगा, तब भी वो मैक्स टू मैक्स 2 मैच खेल सकता है ना, एट द ग्रुप स्टेज. सो इसका कंक्लूजन ये है कि अगर यहां पे मुझे ये नंबर 3 दिख रहा है, सो बेस्ड ऑन दैट आई कैन डेफिनेटली कंक्लूड कि अरुणा वुड हैव मूव्ड ऑन टू द सेमीफाइनल्स. बिकॉज 3 मैचेस है, 3 मैचेस विदाउट प्लेइंग द सेमीफाइनल एंड फॉरवर्ड, हम ये नहीं बोल सकते कि वो तीनों मैच हमारे ग्रुप स्टेज पे ही खेलेंगे, क्योंकि मैक्स टू मैक्स कोई पर्सन ग्रुप स्टेजेस में कितना मैच खेल सकता है? 2 मैचेस. तो अगर इसने 3 खेले तो दैट मीन्स अरुणा वुड हैव डेफिनेटली वन द ग्रुप स्टेज, राइट, एंड शी और ही वुड हैव प्रोसीडेड टू द सेमीफाइनल. तो यहां से ऑब्वियसली आपका अरुणा इज मूविंग, तो अरुणा को यहां लिख लेते हैं, अरुणा. ठीक है. सिमिलरली अब यहां पे और जैसे हम ब्रेक करना स्टार्ट करें, क्योंकि इसने और भी इंफॉर्मेशन दी थी, अरुणा डिड नॉट प्ले अगेंस्ट आरिफ. नाउ अब एक चीज और समझना, अरुणा यहां से आगे बढ़ी है, दैट मींस अजुल एंड आरिफ दोनों ग्रुप स्टेज तक ही खेले होंगे, जिसमें अजुल का 2 मैचेस है. तो इसके बेस पे हम ये डेफिनेटली कंक्लूड कर सकते हैं कि अजुल ने ही 2 मैचेस खेले होंगे अपने ग्रुप स्टेजेस पे. सो अजुल वुड हैव प्लेड अगेंस्ट 1 प्लेयर एंड 1 अगेंस्ट हिम, और फिर वो दूसरे प्लेयर के साथ मैच खेला होगा. एंड ऑल्सो ये जो दूसरा मैच होगा इन द ग्रुप स्टेज, इसमें अजुल नहीं जीता होगा, इसमें कौन जीती होगी? अरुणा जीती होगी, तभी वो हमारा सेमीफाइनल प्रोसीड करी. सो अजुल एंड अरुणा के मैच में अरुणा वुड हैव वन. तो हम डेफिनेटली ये भी कंक्लूड कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस कि अरुणा वुड हैव बीन रैंक्ड फर्स्ट हियर, राइट. ये हमारी प्लेयर 1 होगी, रैंक प्लेयर 1 इन दिस ग्रुप, राइट. एंड जो दूसरा मैच, मतलब जो पहला मैच रहा होगा अजुल का, वो किसके साथ डेफिनेटली रहा होगा? वो तुम्हारा रहा होगा अजुल का आरिफ के साथ. सो दैट सेटिस्फाइज ऑल द नंबर्स, राइट. कि आरिफ का एक मैच हुआ होगा, हार गया होगा तो एक ही मैच रह गया होगा. अजुल आरिफ के साथ जीता होगा, सो एक मैच इसका यहां काउंट हो गया होगा. फिर ये खेला होगा अरुणा के साथ, जिसमें अरुणा जीत के शी वुड हैव प्रोसीडेड टू द सेमीफाइनल्स, राइट. तो अजुल के 2 मैचेस सेटिस्फाइड है. नाउ इससे आपको ये भी समझ में आ रहा है कि अरुणा का इस ग्रुप स्टेज में एक ही मैच हुआ है. एंड बिकॉज वी आर सेइंग कि अरुणा का ग्रुप स्टेज में एक ही मैच हुआ है और उसके टोटल नंबर ऑफ मैचेस 3 है, तो वो बाकी के 2 मैचेस कौन से होंगे? एक तो होगा सेमीफाइनल वाला मैच, दूसरा मैच वो हो गया, और तीसरा मैच फिर कहां से आएगा? तो उसके बेस पे हम डेफिनेटली कंक्लूड कर सकते हैं कि अरुणा वुड हैव डेफिनेटली वन द चैंपियनशिप, राइट. आई होप दिस इज परफेक्टली क्लियर, राइट, कि अरुणा वुड हैव वेंट ऑन टू विन द चैंपियनशिप, राइट. आई होप दिस दैट क्लियर. नाउ
यही सेम लॉजिक हम आगे भी कंटिन्यू करें, जैसे 3-1 इसमें भी आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे भी 3-1 दिख रहा है, इसमें सेम चीज फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि कौन से मैचेस वगैरह हुए होंगे। नाउ अगेन द सेम थिंग आई एम सीइंग हियर, राइट। चित्रा 3 मैचेस खेली है, तो ऑब्वियसली 3 मैचेस के साथ वी कैन डेफिनेटली से शी वुड हैव प्रोसीडेड टू द सेमीफाइनल्स, राइट, बिकॉज 3 मैचेस हुए हैं, राइट। तीनों मैचेस ग्रुप स्टेज पे तो कोई नहीं खेल सकता, तो 3 मैचेस अगर इसने खेले हैं तो ग्रुप स्टेज से बाहर निकले होगी, बाहर निकलने का मतलब सेमीफाइनल पे तो डेफिनेटली आई होगी, राइट। सो चित्रा तो डेफिनेटली बाहर इसमें जीती है, ठीक है, ग्रुप स्टेज। अब हमें ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि वेदर चित्रा वुड हैव एक्चुअली बिग बीन रैंक 1 और नॉट, वो सोचना स्टार्ट करते हैं। तो फिर से वही सेम तरीका कि चित्रा डेफिनेटली यहाँ पे जीती है, राइट। अब इसका मतलब यहां पे ये है कि चेतन एंड छवि दोनों ही ग्रुप स्टेज तक ही अपने मैचेस खेले होंगे, राइट। चेतन एंड छवि दोनों अपने ग्रुप स्टेज तक ही मैचेस अपने खेले होंगे। नाउ चेतन के 2 मैचेस है, तो डेफिनेटली बिकॉज उसके 2 मैचेस है और ग्रुप स्टेजेस में है, तो 2 मैचेस ही होते हैं आपके ग्रुप स्टेज पे, तो चेतन दोनों मैचेस में इन्वॉल्व रहा होगा, राइट। अब चेतन अपना पहला मैच खेला होगा, या जो भी है, चेतन अपना पहला मैच खेला होगा एंड ही वुड हैव वन दिस, राइट। एंड वो खेला होगा फिर दूसरे प्लेयर के साथ। अब वो जो दूसरा मैच हुआ होगा, राइट, वो जो दूसरा मैच हुआ होगा वो डेफिनेटली आपका चित्रा के साथ हुआ होगा, तभी चित्रा हमारा प्रोसीड कर रही है टू द सेमीफाइनल। तो चेतन एंड चित्रा का मैच यहाँ पे हुआ होगा, चित्रा वुड हैव वन। अब चेतन अपना पहला मैच ऑब्वियसली किसके साथ खेला होगा, छवि के साथ खेला होगा, सो दैट सेटिस्फाइज ऑल दीज नंबर्स इट्स आल्सो राइट, कि छवि का हमारा कितना हो गया, 1 विन, सॉरी 1 विन नहीं, 1 मैच हो गया। चेतन का हमारा 2 मैचेस हो गए एंड चित्रा का हमारा यहाँ पे एक ही मैच हुआ, राइट। सो शी वुड हैव डेफिनेटली बीन रैंक्ड 1 इन दिस ग्रुप, ठीक है। चित्रा का हम डेफिनेटली यहाँ पे बोल सकते हैं शी वुड हैव रैंक्ड 1 इन दिस ग्रुप। तो यहाँ पे एक्चुअली में नोटिस करोगे तो उसका भी क्या हुआ होगा, यहाँ पे डेफिनेटली आपका एक मैच हुआ होगा, ठीक है। तो चित्रा वुड हैव प्रोसीडेड, इसका मतलब एक्चुअली ये भी है कि चित्रा अब 2 मैचेस और खेलेगी, क्योंकि उसका टोटल काउंट तो 3 है। सो चित्रा यहाँ पे 2 मैचेस खेलेगी, तो एक सेमीफाइनल खेलेगी, वो भी हमें पता ही है। तो एक और मैच है, दैट मीन्स चित्रा यहाँ के ग्रुप के साथ जो विनर के साथ जो मैच खेलेगी वो भी जीत जाएगी एंड शी वुड हैव प्रोसीडेड टू द फाइनल्स। तो हम फाइनली ये भी बोल सकते हैं कि अरुणा एंड चित्रा का एक्चुअली में नोटिस करोगे तो क्या हुआ होगा, फाइनल मैच हुआ होगा। और इसमें जब ये इसने बोल दिया चित्रा डिड नॉट विन द चैंपियनशिप, मतलब फाइनल जो मैच होगा, आई कैन राइट दिस फाइनल हियर, जो फाइनल मैच हुआ होगा वो अरुणा एंड चित्रा का हुआ होगा, विच अरुणा वुड हैव डेफिनेटली वन। क्लियर, तो काफी कुछ यहीं से नंबर्स के थ्रू ही ब्रेक डाउन हो जाएगा। नाउ अब चलते हैं जरा बाकी बी और डी ग्रुप्स को ब्रेक डाउन करने पे, राइट। अब बी और डी में क्या हुआ होगा, क्योंकि यहाँ के नंबर्स थोड़े से डिफरेंट है, राइट। यहाँ तो 3-2-1 था, तो आपने ये सिंपल एक ही लॉजिक दोनों में लगा लिया, बट नाउ बृंदा और दिपेन में आपका नंबर्स डिफर करेंगे। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि हमें ये ऑलरेडी पता है कि यहाँ अरुणा निकलेगी और यहां से ऑब्वियसली देखो, बिकॉज बेस्ड ऑन दिस नंबर 3 हमें पता है कि बीजू विल प्रोसीड, क्योंकि ग्रुप स्टेज पे दोनों मैचेस मतलब तीनों मैचेस खेलना पॉसिबल नहीं है। सो 3 मैचेस खेलने का मतलब डेफिनेटली सेमीफाइनल तो खेले ही होंगे। सेम यहां से भी हम वो चीज फिक्स कर लेते हैं कि यहां से डेफिनेटली दिपेन वुड हैव प्रोसीडेड टू द सेमीफाइनल्स, बिकॉज उसका भी अगेन क्या है, 3 मैचेस। एंड ये जो मैच हुआ है अरुणा एंड बीजू का, उसमें मुझे पता है कि अरुणा वुड हैव वन, तभी वो सेमीफाइनल के बाद फाइनल खेल रही है, तभी उसके 3 मैचेस कंप्लीट होंगे। एंड यहाँ पे भी चित्रा और दिपेन में भी चित्रा वुड बी विनिंग अगेंस्ट दिपेन, राइट, तभी चित्रा के भी 3 मैचेस कंप्लीट हुए होंगे, एक ग्रुप स्टेज पे, एक सेमीफाइनल में और एक फाइनल में। बाकी फाइनल में हमने पहले डिसाइड कर रखा है कि अरुणा वुड हैव वन। नाउ इसका क्या इसमें देखो रेलेवेंस बनता है, इसका ये रेलेवेंस बनता है कि अब बिजू और दिपेन दोनों के लिए हमें एक्चुअली में पता है कि ये दोनों प्लेयर ही सेमीफाइनल तक गए होंगे, तो ये दोनों प्लेयर सेमीफाइनल में एक एक मैच अपना खेले होंगे। इसका मतलब अब ये जो बिजू का जो 3 है, वो 3 में से एक मैच बिजू ने अपना कहां पे खेला होगा, सेमीफाइनल में खेला होगा, उसके बियॉन्ड तो वो गया ही नहीं होगा। मतलब बिजू ने अपने 2 मैचेस कहां खेले हैं, ग्रुप स्टेज में ही खेले हैं। एंड सिमिलर इज द लॉजिक फॉर दिपेन, क्योंकि दिपेन भी सेमीफाइनल में एक मैच खेला और वो हार गया, तो फाइनल में तो गया नहीं, तो सेमीफाइनल में एक मैच है, तो बाकी बचे हुए 2 मैचेस उसने कहां खेले हैं, ग्रुप स्टेज पे खेले। तो यहां पे अगर हम इनके ग्रुप्स के लिए ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करें, सो मुझे पता है कि जो ग्रुप बी में मैचेस हुए हैं उसमें बीजू जो है वो 2 मैचेस खेल रहा होगा, तो डेफिनेटली वो रैंक 1 तो नहीं रहा होगा। सिमिलरली इस वाले ग्रुप में भी दिपेन जो है वो 2 मैचेस खेल रहा होगा, राइट। अब प्रॉब्लम ये है
कि अब हम इसके बाद स्पेसिफिकली नहीं बता सकते, राइट। हम ये नहीं बता सकते कि इनके ग्रुप में मतलब रैंक 1 कौन है, क्योंकि बिजू अपना जो मैच पहला खेला होगा उसको जीता होगा, राइट। अब वो किसके अगेंस्ट खेला होगा, ऑब्वियसली लाइक जो भी सेकंड एंड थर्ड बिजू के साथ जो होगा, राइट। बिजू हमारा रैंक 1 नहीं है, राइट। बिजू हमारा डेफिनेटली रैंक 1 नहीं हो, क्योंकि वो 2 मैचेस खेल रहा है ग्रुप स्टेज पे। तो बिजू हमारा मैच ब्रिंदा या ब्रिज के साथ खेला होगा, राइट। ब्रिंदा, एक बार ब्रिंदा के साथ खेला होगा, और ऐसे लिख सकते हो एक बार आपका ब्रिज के साथ खेला होगा। दोनों ही मैचेस बिजू खेल रहा है, बट यहां पे मैं वो पहला मैच नहीं बता सकता ग्रुप बी का। इट कुड बी बिजू ब्रिंदा, राइट, जिसमें बिजू एंड बिरंदा वुड बी सेकंड एंड थर्ड रैंक इन सम ऑर्डर। बिजू जिसको जीत गया होगा, एंड सपोज रैंक 1 आपका ब्रिज है तो उसके साथ खेला होगा, और उसमें बिजू जीत के सेमीफाइनल प्रोसीड कर गया होगा। बट आई कैन नॉट से कि ब्रिंदा और ब्रिज में कौन रैंक 1 है। इट कुड बी ब्रिंदा एज वेल, इट कुड बी ब्रिज एज वेल। और सेम लॉजिक आपका यहाँ ग्रुप डी के लिए भी एप्लीकेबल है। दीपेन डेफिनेटली मेरा रैंक 1 नहीं है, क्योंकि वो 2 मैचेस खेल रहा है ग्रुप स्टेज पे। बट दीपेन अपने जो ये 2 मैचेस हैं, एक मैच खेल रहा होगा डोना के साथ, एंड एक मैच खेल रहा होगा देव के साथ, और ये दोनों ही मैचेस जीत के पहुंच रहा होगा सेमीफाइनल में, जो बाद में जाके एक्चुअली में हार गया होगा चित्रा से। बट बिटवीन डोना एंड देव हम रैंक 1 क्लियरली नहीं बता सकते। हो सकता है रैंक 1 आपका देव हो, तो दीपेन एंड डोना ने मैच खेला सेकंड एंड थर्ड रैंक्स इन सम ऑर्डर, उसमें दीपेन जीता, और रैंक 1 देव के साथ खेला जिसमें दीपेन जीत के सेमीफाइनल पहुंच गया। और इट कुड हैव बीन द अदर वे राउंड एज वेल, right? And I think that is a maximum we can figure out in this particular scenario. अब इसके beyond हम चल सकते हैं डायरेक्टली अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। Clear? Now, the first problem, who among the following was definitely not ranked first in his or her group? Definitely not one, right? तो चित्रा मुझे पता है डेफिनेटली रैंक 1 है, अरुणा डेफिनेटली रैंक 1 है, दीपेन क्या रैंक 1 हो सकता है? नो, दीपेन कैन डेफिनेटली नॉट बी रैंक 1, बिकॉज उसने ग्रुप स्टेज पे 2 मैचेस खेले हैं, राइट। ब्रिज हो सकता है क्या? डेफिनेटली हमारा ब्रिज रैंक 1 हो सकता है, जैसा कि हमने डिस्कशन किया, राइट। सो द आंसर टू द फर्स्ट प्रॉब्लम इज ऑप्शन सी। Second, which of the following pairs must have played against each other in the championship? किसका मैच डेफिनेटली हुआ ही होगा इस चैंपियनशिप में, राइट। अजुल एंड बिजू, अजुल एंड बिजू कभी खेले ही नहीं होंगे, क्योंकि अजुल कभी सेमीफाइनल में गया ही नहीं, तो ग्रुप बी के टीम के साथ तो वैसे भी नहीं खेल सकता। सो ये एलिमिनेट हो गया। डोना एंड चेतन, डोना इज ऑल्सो नॉट प्रोसीडिंग टू द सेमीफाइनल्स, इस ग्रुप से बाहर निकली नहीं, तो डोना विल नॉट प्ले अगेंस्ट चेतन। देव एंड डोना, सो यहां से देव एंड डोना, देव भी अगेन सेमीफाइनल में पहुंचा ही नहीं, तो देव एंड, सॉरी, देव एंड डोना, राइट। देव एंड डोना डेफिनेटली इनका भी मैच नहीं हुआ होगा बाय द वे, क्योंकि डेव एंड डोना दोनों डिपेन के साथ खेलेंगे, तो ये भी मैच डेफिनेटली नहीं हुआ है। चित्रा एंड दिपेन, व्हाट अबाउट चित्रा एंड दिपेन? सो यहाँ से चित्रा एंड दिपेन का डेफिनेटली सेमीफाइनल में तो मैच हमें दिख ही रहा है, सो दैट वुड बी परफेक्ट, राइट। तो चित्रा एंड दिपेन मस्ट हैव प्लेड अगेंस्ट ईच अदर इन द चैंपियनशिप। थर्ड, हु वन द चैंपियनशिप? दैट इज वेरी इजी, हम स्टार्टिंग से बोल पा रहे हैं, दैट हैज टू बी अरुणा, राइट, अरुणा। देन हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट प्ले अगेंस्ट चित्रा इन द चैंपियनशिप? चित्रा के साथ कौन नहीं खेला है, राइट। तो चित्रा के साथ क्या अरुणा का मैच हुआ होगा? यस, इन द फाइनल तो हुआ ही, हमें ये भी पता है, तो ये एलिमिनेट हो गया, डिड नॉट प्ले ढूंढ रहे हैं। चित्रा एंड दीपेन का भी मैच हमें पता है सेमीफाइनल में हो रहा है, सो ये भी एलिमिनेट हो गया। चित्रा एंड चेतन, चित्रा एंड चेतन, चित्रा एंड चेतन का भी मैच डेफिनेटली हमारा ग्रुप स्टेज में हुआ है, सो ये भी एलिमिनेट हो गया। सो डेफिनेटली चित्रा एंड बिजू का कभी भी मैच नहीं होगा, राइट। सो दैट हैज टू बी द राइट आंसर, राइट। इजी टू मॉडरेट डिपेंडिंग ऑन हाउ क्विकली यू फिगर आउट दैट 3-1-1 एंड 3-2-1 वाला ब्रेक डाउन, एंड उसके थ्रू बाकी के आपके मैचेस इन द ग्रुप स्टेज, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन जस्ट पुट दैट इन द कमेंट्स। थैंक यू।